और ये मोदी जी आए, झूठ आदमी है, झूठा बोलता है। बोला था ना 15 लाख दे देगा, दिया। साल में 2 करोड़ चाकरी होगा। नोटबंदी का टाइम बोला मेरे सिर्फ 50 दिन टाइम दीजिए, नहीं होगा तो हम चौराहों में खड़ा हो जाएगा। कहाँ खड़ा हुआ? झूठा झूठा झूठा। दारियाला हमारा मोदी बाबू बोला है जीडीपी बढ़ेगा। हम लोग सोचा था जीडीपी बढ़ेगा मतलब देश का तरक्की होगा। वो बोला नहीं, वो बात हम नहीं बोला, हम बोला जीडीपी, गैस पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा, यही बोला है। देश की आजादी में 2 जात, पंजाब और बंगाल लड़ा है, और ब्रिटिश पंजाब को काटा और बंगाल को काटा। पंजाब में कांग्रेस जीता, बंगाल में ममता दी जीतेगा। चलेगा नहीं मोदी जी का लड़ना। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੀਐਮਸੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਐਮਸੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੜਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਹਜੇ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪ ਟੀਐਮਸੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ? ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 18000 ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 18000 ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18000 ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6000 ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਰਖਾਬ ਚੰਦ। ਦੋਸਤੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੀ ਹਵਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੂਮਨ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੈਰ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਲੋਕ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੌਫੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲਕੱਤਾ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ जानना चाहते हैं इस वक्त हालात की ने पश्चिमी बंगाल दे ते की कहना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है? बाबली सरकार। बाबली शंकर। तो क्या हालात हैं इस वक्त? अगर पश्चिमी बंगाल की बात करें तो खेला होबे ऐसे एक बात निकल रही है। तो 10 साल जो टीएमसी के थे वो बढ़िया है या परिवर्तन चाहिए? जो है ठीक है, जो है ठीक है। औरतों की सुरक्षा के बारे में बहुत बड़ी बात कही जा रही है कि पश्चिमी बंगाल में, कोलकाता में औरतें बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं। हाँ, ये तो ठीक है, ठीक सिर्फ हाँ, हम लोग सुरक्षित है। हम लोग तो सर्विस करता है, रेलवे में काम करता था, अभी हम रिटायर हो गया। लेकिन ठीक है, हम लोग कलकत्ता में बहुत अच्छे तरीके से हम रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश की राजधानी की बात करें, दिल्ली में कहीं ना कहीं दिक्कत लड़कियों को आती है कि रात को निकलने में। कोलकाता में ऐसा कुछ है? नहीं। आपका नाम क्या? अल्पना चौधरी। अल्पना। तो क्या आप कैसे देखते हो इस इलेक्शन को, या इसमें जो दिल्ली की सड़कों पर या दिल्ली की सरहदों पर जो किसान आंदोलन हो रहा है उसका असर पश्चिमी बंगाल में कितना है? थोड़ा बहुत तो पड़ रहा है, सबको मन में है ना। आपको क्या पता है? आप वहाँ तो गए नहीं होंगे दिल्ली में, लेकिन आपको क्या पता है वहाँ क्या हो? मालूम हो रहा है, न्यूज़ से मालूम हो रहा है। और न्यूज़ वाले कई चीजें तो ऐसी है ना जो आजकल बात नहीं दिखा रहा है, सच भी नहीं होता। हाँ वो बात तो है। तो सच भी नहीं होता। तो
फिर भी क्या क्या लगता है आपको, क्या आप दोनों पूछना चाहते हो, क्या हो रहा है वहाँ दिल्ली में? किसान बैठे हैं, सही बैठे हैं, आपको क्या लगता है? उन पर सवाल उठते हैं फंडिंग के। नहीं, सही है, जो बैठे हैं सही है। हम तो सही लगता है, हमको होना चाहिए ऐसा ही। जो फंडिंग का सवाल सपोर्ट करना चाहिए, सबको सपोर्ट करना चाहिए। सही हो जो है, सही हो रहा है। क्या नाम है आपका? तुमेका। तो वुमेन्स सेफ्टी के बारे में क्या कहना है, कैलकाटा के बारे में? पहले देखो, अगर हम कंपेयर करें दूसरे जगह से तो कोलकाता की लड़की लोग बहुत बोल्ड है। वो अपना हम लोग जैसे कि रात भी एक साथ निकल रहे हैं, रात को भी, तो मुझे नहीं लगता कि कोलकाता लड़की अनसेफ है। तो कंपेयर टू अदर स्टेट्स इट्स क्वाइट अ सेफ सिटी टू स्टे फॉर वीमेन। सेफ है। तो क्या चाहते हो आप, परिवर्तन चाहते हो कि नहीं चाहते? या सोनार बंगला चाहते हो, जैसे आपको सोनार बंगला भी लग रहा है? देखो, वो तो जनता के ऊपर है। वो तो अब मैंने सब जनता डिसाइड करेगी। अब जनता जो डिसाइड करेगी वो सही करेगी, मुझे लगता है। तो जनता डिसाइड करेगी, जनता जिसके नाम का फतवा जारी करेगी वो सही होगा। सर, आपका क्या नाम? मेरा नाम तपन सरकार। तपन सरकार जी। तो अपने आप में आप सरकार ही हो? ये तो पुश्तैनी तौर पे मिला जी। वो तो सरकार टाइटल मिल गया तो बोलना ही है आपको। तो कैसा, अगर इस माहौल की बात करें, इस माहौल में क्या बदलाव देख रहे हो आप या नहीं देख रहे? ना, बदलाव का कुछ खास नज़र तो नहीं आ रहा है। अब कोई भी इलेक्शन आप करने जाओ तो बहुत वाइब्स आता है चारों तरफ से, तो मतलब ही लोग इधर उधर घूमता रहता है। तो मेरे ख्याल से अभी जो चल रहा है सिस्टम, इसका थोड़ा करेक्शन चाहिए। लेकिन परिवर्तन सही मतलब क्या होगा, यू कैन डिसाइड राइट नाउ। हाँ, न खेला होवे जो ये जो स्लोगन चल रहा है, ये पॉलिटिकल स्लोगन है, मान लीजिए। ये 2 मई तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई भी एक शब्द नहीं निकालेगा कि खेला होवे। अभी ये पॉलिटिकल, हाँ, ये पॉलिटिकल एक मतलब स्लोगन है। तो आप मानते हैं सोनार बंगला भी सिर्फ ये मई तक है, उसके बाद ये भी नहीं निकलेगा? नहीं, कुछ नहीं निकलेगा। सब सारे पॉलिटिशियंस जो है मतलबी है। आप देखिए 1977 में जनता राज में प्रोफेसर मधु दंडवते जो थे, उन्होंने बताया था, अगर हमारा मैं रेलवे से बिलोंग करता हूँ, अभी रिटायर हुआ हूँ मैं, तो उन्होंने बताया था कि अगर रेलवे का एम्प्लॉय लोग ऑनेस्ट होता तो जो पटरी है ना, वो पटरी सोने की बनती जी। उनका स्टेटमेंट था। बाय प्रोफेशन ही वाज ए प्रोफेसर। तो वही है। तो हम सेल्फ क्रिटिसिज्म कभी नहीं करते, हम खाली दूसरे को ढूंढते हैं कि वो उसका क्या नुक्स है। ये तो सही बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से लगता है जो अभी जो रात चल रहा है ठीक ही चल रहा है, थोड़ा बहुत करेक्शंस चाहिए, लेकिन ये जो परिवर्तन वो क्या निकलेगा ये तो हमको वेट करना पड़ेगा। अब अभी से आप कुछ बता नहीं सकते। मैम, आपसे जानना चाहेंगे, रोजगार के बारे में बात हो रही है इस वक्त, जो बदलाव की बात हो रही है, तो रोजगार आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी सरकार वादा कर चुकी है पहले 2 करोड़ रोजगार हर साल देने में, उसमें अभी तक सक्षम या कामयाब नहीं हो पा रही, तो यहाँ जो वादे किए जा रहे हैं क्या वो कामयाब होगी उसमें? वो तो टाइम ही बताएगा कि कैसे काम होगा कि नहीं होगा। बट पर्सनली वो मतलब मुझे नहीं लगता उतना, शायद तो चेंज, इतना मेजर चेंज आएगा बीजेपी आने से शहर में। चेंज नहीं आएगा, अब इतना बड़ा चेंज नहीं है। हाँ, मुझे भी नहीं लग, मुझे पर्सनली वो तो डिफर करते हैं फ्रॉम 1% टू दी अदर, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि इतना मेजर चेंज होगा बीजेपी आने से शहर में। बारे में अगर यूथ की बात करें तो यूथ इस वक्त क्या डिमांड रखता है, खास करके आपका कैलकाटा का या पश्चिम बंगाल का यूथ आपके हिसाब से क्या डिमांड रखता है? यूथ को डिमांड है कि बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़ हो जाए, क्योंकि आप मतलब अगर आप बाहर जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बंगाली पीपल हम लोग शहर के बाहर चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतना वर्क अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अगर है भी सैलरी उतना नहीं मिलता है। तो शायद अगर ये थोड़ा बेटरमेंट आ जाए कि वी हैव बेटर वर्क अपॉर्चुनिटीज़, वी हैव बेटर सैलरी, तो शायद अगर ये जो गवर्नमेंट अभी है उसमें थोड़ा ध्यान दे तो बेटर रहेगा। ये गवर्नमेंट ध्यान दे तो बेटर होगा। अच्छा, बात है बिहार, यूपी, अगर हरियाणा की बात करें तो वहाँ का शासन आपने सुना या देखा होगा, खबरों में देखा होगा, वो बड़ी बड़ी बातें ज़रूर करते हैं, स्टेज से करते हैं। क्या वो बातों का इफेक्ट हो रहा है? क्या वो बातें सच्ची लगती हैं आप? पॉलिटिशियंस तो सर हम लोग सब पता है कि सबका खुद का प्रोपेगेंडा होता है कि हम सब मीठे मीठे बातों से वादे कर लेते हैं, तो इफेक्ट उतना होता नहीं है। बट आई एम श्योर कि वहाँ का सिनेरियो यहाँ से तो थोड़ा बेटर है ही,
तो शायद वो काम मीठे बातें शायद तो काम कर रहा है, तो अभी वो वक्त ही बताएगा ना कितना काम किया कितना नहीं किया। वक्त बड़ी चीज़ है और देखना ये है कि इस वक्त से क्या निकलेगा, इस वक्त में क्या बताया जाएगा। दादा क्या हाल है? बस ठीक है। ठीक है, तो नाम क्या है पहले आप? जाहिद अहमद। तो आपका क्या मतलब इस वक्त क्या ओपिनियन है आपका, क्या आप सोचते हो पश्चिम बंगाल को लेकर कि किस तरह का खेला होगा और किस तरह का परिवर्तन होगा अगर होगा? परिवर्तन तो होने वाला है नहीं होने वाला। जो भी आ जाए वही रहेगा, जो भी आ जाए वही रहता है। जो भी आ जाए। पर क्या चाहिए, बड़ी बात यह है कि क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए अगर आता है? पीस। पश्चिम बंगाल में पीस है? जी नहीं, फिलहाल तो है। फिलहाल है, वो बोलते नहीं है। मेरे हिसाब से नहीं है। आपका नाम क्या? मेरा नाम विजय कुमार सिंह है। विजय, क्या आपको क्यों नहीं लगता, क्यों नहीं है? लड़कियां बोलती हैं कि सबसे ज़्यादा सेफ हम पश्चिम बंगाल या कलकत्ता में है, इसके अलावा और किस कारण पीस नहीं है, शांति नहीं? सेफ अलग है, पीस अलग है। देखिए सेफ अगर आप बोल सकते हैं सेफ है, पीस इन द सेंस कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि पीस चल रही है। इलेक्शन के अकॉर्डिंग जो समय में जो चल रहा है इसके हिसाब से। ये धर्म का पत्ता पश्चिम बंगाल में चलेगा? वो तो देखिए मेन ट्रम्प कार्ड है, हर जगह चलता है, हर जगह वही चलाते हैं। यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा? चल भी सकता है, पब्लिक बता पाए। पब्लिक बोल रही है कि हम विभाजन की राजनीति नहीं चाहते। बस मैं भी तो वही चाहता हूँ। आप भी नहीं चाहते? साथ में हूँ। सब राजनीति नहीं एकदम सेम। तो क्या लगता है इस वक्त, अगर मैं सिर्फ एक शब्द में आंसर चाहता हूँ, टीएमसी या बीजेपी? सही इंसान। नो चॉइस। कुछ भी नहीं। ठीक है, हाँ जी। कुछ भी हो सकता है, बोलना मुश्किल है क्योंकि सेम है, बिहार तो सेम सिचुएशन सेम है। मतलब दोनों का कोई हेड एंड टेल। इनका कहना है कि एक सिक्के के दो पहलू हैं, चाहे कुछ भी हो जाए शांति चाहिए, इनको सिर्फ शांति चाहिए। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ? ਹੋ ਗਏ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 40 ਸਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਪੀਐਮ, ਫਿਰ ਟੀਐਮਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟੀਐਮਸੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਟੀਐਮਸੀ ਆਉਣੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਟੀਐਮਸੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੜਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯੂਥ ਹਜੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪ ਟੀਐਮਸੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਾਰਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ, 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੰਗਾ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਪੱਕਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਮਤਲਬ ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਟੀਐਮਸੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਟੀਐਮਸੀ ਆਊਗੀ? ਇਹਦਾ 100% ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਨਾਰ ਮੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਨਾਰ ਮੰਗਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਇਦੋਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ? ਹੁਣ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਡਾਇਮੰਡ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਸੁਨਾਰ ਬੰਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਲਵਰ ਬੰਗਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਿਲਵਰ ਬੰਗਲਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੁਨਾਰ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ। ਦਲਬੀਰ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ? ਕਰੀਬ 50 ਸਾਲ। 50 ਸਾਲ। 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੋਣੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੀਆ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਤੇ ਕਲਕੱਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਆ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਿਸਪੈਕਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਸਟ ਕਲਾਸ। ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਸਾਡੇ।
ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਜੇ ਜਾਈਦਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੀ ਆਈਏ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਬੈਠੀਏ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹੀਦਾ ਅਗਲੇ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ? ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਉਰੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਲਕੱਤੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਮੈਂ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਪੇਅਰਸ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਰੇ ਆਈਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਾਲੀ ਉਰੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤ, ਮਾਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਗੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਰੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 18000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲ ਦਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 18000 ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ 18000 ਉਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 18000 ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ 6000 ਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਸਾਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆ। MP 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ। ਮਾਫ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 3000 ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3000 ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਪਾਤੀ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਿਆ ਕੇ LG ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵੀ LG ਪਾਸ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢੀਏ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਰੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਹ APMC ਐਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਐਕਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਦ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਸਨ ਮੁੱਲਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਥੋੜੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ 100% ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30-40% ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ BJP ਦੀ ਹਵਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਣੀ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੌਲੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਝੱਗ ਵਾਂਗੂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਆਉਣੀ ਉਰੇ TMC ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਰੇ ਸਿਟੀ 'ਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। CPM ਨੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। TMC ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰਨ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੁਣਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਰੇ ਸਾਲ ਚੁਣਨੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਕ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਆਹ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। UP ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਦੂਜੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਵਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਮ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਡਦੇ ਆਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਜਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੂਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਪਾਵਰ ਹੈ ਯੂਥ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਥ ਇੱਥੇ किस तरीके का है। दादा क्या हाल है? हमसे ठीक। हाल पूछा मैंने तो दादा आपका। ठीक है ठीक है। जिस तरह का माहौल है उसमें बढ़िया है। ठीक है। नाम क्या है? प्रॉब्लम है नहीं। अच्छा, नहीं बोलेंगे तो नाम भी नहीं बताएंगे। ये बंगाल का प्रॉब्लम मुझे लगता है, लेकिन बोलना चाहिए था। सर क्या नाम है? मयंक चतुर्वेदी। मयंक चतुर्वेदी। तो चतुर्वेदी साहब, क्या इस वक्त लगता है कि लोगों की मुट्ठी में क्या है? मुट्ठी में क्या है? जो जैसा कमा रहा है उसकी मुट्ठी में वही सब कुछ है। कैसे बताऊं आपकी मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरी मुट्ठी में मैंने जो आज तक कमाया है वो मेरी मुट्ठी में है। लेकिन जब ये मुट्ठी खुलेगी, इलेक्शन के बाद खुलेगी, तो वो किस तरह की होगी कि उसमें भविष्य क्या है पश्चिम बंगाल का? पश्चिम बंगाल का राजनीतिक जो सिचुएशन अभी चल रहा है
उस सिचुएशन में अभी वोटर अपनी राय देना पसंद नहीं कर रहा है, क्योंकि वो देखना चाहता है कि पहले क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मशीन में अपना मत वो रखेंगे। जब बंगाली बुद्धि की बात करें ना, तो बंगाली बुद्धि आपके कहने तरह के बहुत चालाक रहती है। जी जी जी, सीनियर भी हैं। सर आइए प्लीज, इस साइड आ जाइए, क्योंकि लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है रात को। तो वो बंगाली बुद्धि की बात करते हैं तो बड़ा वो देखते हैं, परखते हैं, तो उसके बाद फैसला लेंगे। तो सर पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप सीनियर हो, बुद्धिजीवी लगते हो मुझे, तो नाम क्या है पहले आपका? विश्वनाथ बासु। तो बासु जी, बंगाली बुद्धि इस वक्त क्या दिशा लेकर चल रही है, क्या सोच लेकर चल रही है इलेक्शन के मामले में? इलेक्शन के मामले में यहाँ तो ममता जी जीतेगा, जरूर जीतेगा। सोनार बांग्ला नहीं चाहिए। सोनार बांग्ला जो हिंदुस्तान में अभी क्षमता में है, सेंट्रल में है बीजेपी, और 17 राज्यों में हुआ है उसका सरकार। तो कौन 17 राज्य में सोनार बांग्ला हुआ है या सोनार बांग्ला बनाना है? आगे बनाओ भाई 17 राज्यों में, जहां तुम क्षमता में है 17 राज्य, वहां सोनार बांग्ला बना के देखो। यहाँ सोनार बांग्ला बनाने आया। एक ऑप्शन मुझे ऐसा बात बताइए, टीएमसी ने काम किया इसलिए टीएमसी जीतेगी, या आप लोग बीजेपी को स्वीकार नहीं करना चाहते? दोनों है। काम किया, काम का हम लोग तो पब्लिक को बोल रहा है, देखिए हम लोग का काम का ये कार्ड है, क्या क्या किया है। इसलिए और ये मोदी जी आए, झूठ आदमी है, झूठा बोलता है। बोला था ना 15 लाख दे देगा, दिया। साल में 2 करोड़ चाकरी होगा। नोटबंदी का टाइम बोला, मेरे से 50 दिन टाइम दीजिए, नहीं होगा तो हम चौराहों में खड़ा हो जाएगा। कहाँ खड़ा हुआ? झूठा झूठा झूठा। ये प्रधानमंत्री को झूठा बोल रहे हैं। हाँ, झूठा सही बोला है। प्रधानमंत्री को नहीं, उसका जो बात बोला है, वो जो बात बोला है उसका बात ही बोलता है। वो थोड़ा दाढ़ी उड़ी रख के ना, वो साधु का तरह बात बोलता है। हम लोग का बंगाल में नहीं, सारा हिंदुस्तान में रामकृष्ण का नाम सुना है, रामकृष्ण परमहंसदेव। वो बोला था बहुत साल पहले, टाका माटी और माटी टाका। तो उस टाइम तो हम लोग समझने नहीं सका, साधु बाबा का बात है। अगर समझ लेता तो 200 रुपया काटा यहाँ मिलता, अभी 2 करोड़ रुपया काटा, 1 बीघा रखता तो हो जाता। ये दारियाला हमारा मोदी बाबू बोला है जीडीपी बढ़ेगा। हम लोग सोचा था जीडीपी बढ़ेगा मतलब देश का तरक्की होगा। वो बोला नहीं, वो बात हम नहीं बोला, हम बोला जीडीपी, गैस, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ेगा, यही बोला है। जीडीपी की परिभाषा ही बदल, रुबाक बनाता है हम लोग का। इस जीडीपी के बारे में क्या कहना है, जो इन्होंने जीडीपी की परिभाषा अभी सेट की है? जो बोला है तो सही बोला है। जब हर पेपर में और टीवी में देखिएगा, उन्हें बोलता है जो भारत का विकास किसको हुआ? एक अदानी और एक अंबानी को हुआ। जॉब या आप कलकत्ता रहते हैं? आप नहीं, मैं पंजाब से रहते हैं। तो आप पंजाब वालों का हम एक तो बात बताते हैं, जहाँ यहाँ अम्फान झड़ हुआ था, यहाँ जो कोरोना का था, वो एक की लड़की 5 फुट 3 इंच हवाई चप्पल और 200 रुपया का साड़ी पहन के रास्ता में निकल गया। हर आदमी को समझाया जैसे ऐसा करो। हर आदमी का घर में चावल दाल आलू भेजा है। उस टाइम क्या प्रधानमंत्री का कोई भाषण नहीं था। बंगाल का हजार लड़का गुजरात में काम करने में फंस गया था, उसको ट्रेन में ले आने का प्रधानमंत्री का कोई काम नहीं था, ममता बनर्जी ले आया। और उन्हें अभी चुनाव का सामने चार्टर्ड फ्लाइट करके ले जाता है, आदमी को चार्टर्ड फ्लाइट से ले आता है और डेली पैसेंजरी करता है। और अभी क्या नया घोषणा है, ये किसान मंगोल करेंगे। अब देखिए आपका पंजाब में आज 49 डेज हो रहा है, किसान ने आंदोलन किया है। एक रोज के लिए कोई मिनिस्टर गया है किसान के पास, और यहाँ आकर बोलता है किसान का बंधु बनेगा, फ्रेंड होगा, कैसे होगा? सर 49 नहीं, 100 तकरीबन 110 दिन वाला रोज हो गया। तो अभी आप पंजाब वाले बोलिए, जहाँ पंजाब का आदमी, अगर देखिए मेरे फ्रीडम में 1947 में जब 15 अगस्त देश स्वाधीन हुआ था, तो क्या था? बंगाली और पंजाब था। एक पंजाबी आदमी था, पंजाब का आदमी, और बंगाल का जो मेन पार्ट लिया था ब्रिटिश को ये करने के लिए। उन लोग क्या किया? उन लोग तो चोरी किया। उन लोग क्या किया? वो तो दुश्मनी किया। भगत सिंह को पकड़ दिया, विनय बदल दिनेश को पकड़ दिया। वो तो जनसंघ का आदमी है।
तो इन लोग को क्यों इंडिया का आदमी वोट देंगे? आप किसानों की बात कर रहे हो, लेकिन सरकार बोलती है कि वहां पर विरोधी पार्टियों के बिठाए हुए लोग हैं, किसान नहीं है, वहां पर खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, नक्सलवादी हैं, अर्बन नक्सल है, कांग्रेस के हैं या कुछ और पार्टियों के बिठाए हुए बंदे। देखिए एक बात, किसान लोग बोलता है हमारा, मोदी जी बोले किसान का भालों के लिए, अच्छा के लिए करता है, हमारा अच्छा के लिए आप बोलता है, हम बोलता हाथ जोड़ के, हमारा हाथ जोड़, हमको अच्छा नहीं, जरूरत नहीं, आप आइन उठा लीजिए, जो है सो है, जो है सो है, आइन उठा लो। हम बोलता है आइन उठा लो, हम किसान है, हम लिख देगा, सरकार का कोई दोष नहीं है, काहे नहीं उठाता? 1,000 करोड़ रुपया तो एडवांस ले लिया अंबानी से, तो मंडी देने के लिए, अब एडवांस कैसे फिराएगा? पार्टी फंड में गया। देश की आजादी में 2 जात, पंजाब और बंगाल लड़ा है, और ब्रिटिश पंजाब को काटा और बंगाल को काटा। पंजाब में कांग्रेस जीता, बंगाल में ममता दी जीतेगा, चलेगा नहीं मोदी जी का लड़की। ये ऐलान हो गया, ये ऐलान बड़ा ऐलान है, ये कोलकाता से निकला हुआ ऐलान है, और इस ऐलान का नतीजा अब देखना है कि रस्मी तौर पे क्या होता है। क्या सच में जो ये बात बोल रहे हैं, क्या टीएमसी जीती है या फिर सोनार बांग्ला का जादू यहाँ चलेगा, बीजेपी का जादू यहाँ चलेगा? ये खैर बंद मुट्ठी, और जब खुलेगी तो देखते हैं इसमें नतीजा कौन सा निकलता है। मैं सुरखाब, अपने सहयोगी जस्सी देना, रोजाना स्पोक्समैन, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल।